اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقوی کیا ہے؟ جس پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی گارنٹی دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں سورہ محمد میں آیت نمبر 15 میں اس کا ذکر ہے کہ متقی کو جنت کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ متقی ناؤن ہے، ٹھیک ہے، اور تقوی ورب ہے۔ تو جو تقوی اختیار کرتا ہے، اس پہ چلتا ہے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ تو تقوی ہے کیا؟ اور ایک جگہ سورہ طلاق میں بھی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہ اللہ تعالیٰ کا جو تقوی اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے کامیابی ہے مطلب۔ تو ہم یہ غور کریں کہ تقوی پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی گارنٹی کیوں دی ہے۔ تقوی عرب کے دور میں جب گھوڑا جنگ کے میدان میں ہوتا تھا اور اس کا پیر کا جو نال ہوتا ہے، نال لگا رہتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، تب وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو وہاں سے تقوی لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ، اس ورڈ کو لے کر ہمیں جنت کی بشارت دی ہے اگر ہم اس کو اپنائیں گے تو۔ اور غور کریے گا کہ تقوی یہاں پر جو المتقین، متقی مطلب ناؤن رکھا گیا، مبتدا فارم میں ہے۔ عربی میں مبتدا مطلب ناؤن۔ اب ناؤن ہے تو یہ سب کے لیے ہے، مسلم نان مسلم سب کے لیے ہے۔ یہاں پر ہدی للمسلمین نہیں کہا گیا۔ آیت میں غور کرتے ہیں، الف لام میم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ تو غور کریے، یہ ہدی للمتقین کہا گیا، یہاں پر ہدی للمسلمین نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت۔ ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو تقوی تک پہنچے کیسے ہم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث 2564 میں ہے کہ تقوی سینے میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ سینے میں بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تقوی حکمت کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ الجامع الصغیر میں حدیث نمبر 1609 میں اس کا ذکر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں تقوی تک پہنچا کیسے جائے۔ تو سورہ بقرہ میں ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ تقوی تک کیسے پہنچنا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو سب سے پہلے الف لام میم ہے، اس کے بعد ذالکہ ہے۔ ذالکہ عربی میں کہتے ہیں وہ کو، وہ دیٹ۔ اب دیکھیں دیٹ یا وہ کب استعمال ہوتا ہے؟ دیٹ یا وہ تب استعمال ہوتا ہے جب دو سچویشن ہو سکتا ہے۔ جب کوئی چیز دور ہے اور ہم اس کو اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ لڑکا، دیٹ بوائے، ٹھیک ہے، تو وہ دور ہے اور ہم اشارہ کر کے اس کو بتا رہے ہیں۔ اور دوسرا پہلو اس کا نظر آتا ہے کہ کوئی چیز جس کے بارے میں پہلے سے بات ہو چکی ہے اور ہم اس کو اشارہ کر کے بتا رہے ہیں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ وہ لڑکا، اب وہ لڑکا مطلب کیا ہے؟ اس لڑکے کے بارے میں آلریڈی جانتے ہیں ہم اور اشارہ کر رہے ہیں اس کے طرف، تب وہ ہوا۔ تو مطلب ہم کسی چیز کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں، تب اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تب ذالکہ مطلب وہ کا استعمال ہوتا ہے۔ یا چیز کوئی ہم سے بہت دور ہوتا ہے، تب وہ کے لیے وہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اب ہم دیکھیں گے کہ ذالک الکتاب، اس کے بعد ترنت آتا ہے الکتاب۔ اور ذالکہ سے مراد کیا ہے؟ اگر کوئی چیز اگر بیت چکی ہے تو ذالکہ سے پہلے کیا بیت چکی ہے؟ الف لام میم، الف لام میم بیت چکی ہے۔ تو الف لام میم کہیں نہ کہیں اشارہ کر رہا ہے کہ وہ خاص کتاب، الکتاب، وہ خاص کتاب کیا ہے؟ اس کا ایک نام اللہ عالم ابن آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم قرآن کا ایک نام ہو سکتا ہے، کیونکہ ذالکہ اس سے اشارہ کر رہا ہے کہ جو پہلے بیت چکا ہے وہ الف لام میم ہے۔ تو اس کے بارے میں، اور ذالکہ سے مراد جب ہم دور کا لیتے ہیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب زمین پہ نہیں ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کتاب کے شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اترا۔ جبریل علیہ السلام وحی کے ذریعے، جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، ٹھیک ہے، پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ ABCD بھی نہیں جانتے تھے، اور ان کے زبان سے الف لام میم نکل رہا ہے۔ تو سمپل سا بات ہے کہ اس طرح کا بھاشا استعمال کب ہوتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا اس طرح کا بھاشا۔ ہم کیا آپ سے بات کریں گے
क ख ग ABC ऐसे करके कोई नहीं बात करता। तो ये अगर हम ABC बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम ABCD से पढ़ाई किए हैं, एकदम बुनियाद से पढ़ाई किए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बुनियाद से पढ़ रहे थे। और कौन पढ़ा रहा था? और ये बैकग्राउंड अगर हम देखें तो यहूदी उलमाओं के बीच था। और उलमा टीचर अच्छे तरह से समझ जाते हैं कि जब हरूफ अल्फ़ाबेट्स का बात होता है तो मतलब है कि पढ़ाया जा रहा है, एकदम बैकग्राउंड एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बेसिक से अल्लाह ताला पढ़ा रहे हैं। ठीक है, खैर हमारा मुद्दा यहाँ तकवा है। तो कैसे हम तकवा तक पहुँचे? ज़ालिका से हमको पता चल गया कि भाई अलिफ लाम मीम हो सकता है किताब का एक और नाम है, जो किताब लोहे महफूज में मतलब अल्लाह ताला के पास लिखा गया था। और कतब अरबी में उस टाइम पे जो यूज़ होता था, कतब मतलब होता था कि कोई चीज़ अगर जैसे पत्थर में लिख दिया गया है तो उसको हम रबर से इरेज़र से मिटा नहीं सकते। एक बार लिखा गया लकड़ी में या पत्थर में तो वो लिखा गया, फाइनल हो गया, अब वो बदला नहीं जा सकता। इसी तरह से अल्लाह ताला हमको ये बता रहे हैं कि लोहे महफूज से जो ये किताब तुम तक उतारी गई है इसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकती। और इसमें देखेंगे कि हम अल किताब डेफिनेटिव यूज़ किए। अल किताब मतलब एकदम ख़ास किताब। अब ये ख़ास किताब क्या है? अगर हम आगे बढ़ते हैं, अल किताब के बाद क्या है? ला रईब। ला रईब, ला मतलब होता है नहीं, रईब मतलब होता है शक। और ये ऐसा शक है जो इंसान को अंदर से झंझोड़ देता है। ठीक है, तो अगर हम ये प्रैक्टिकली भी देखें, अगर कोई भी शक इस तरह का रहे इंसान के दिल में और उसके सीने में तकलीफ़ हो रहा हो, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर हम शक को दूर करेंगे, शक को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सवाल करना पड़ेगा, जानने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब ना शक दूर होगा। तो आप इसके बाद तुरंत बात देखिएगा कि ला रैब फीही हुदन लिल मुत्तकीन। जब शक दूर होता है, जब सवाल करते हैं, जब जवाब मिलता है, ठीक है, तब क्या होता है? इंसान को जानकारी होता है। जब जानकारी होता है तब वो सही रास्ते पे चल सकता है। तब देखिए सही रास्ते पे चलना है तो उसके बाद सही रास्ता क्या है? हिदायत। हिदायत अल्लाह ताला की तरफ से जो है वही सही रास्ता है। इसीलिए अगला वर्ड क्या है? अगला कलीमा क्या है? हुदन। ठीक है, और उसके बाद हम अल-मुत्तकीन तक पहुँचते हैं। ठीक है, हुदल लिल मुत्तकीन, तकवा तक पहुँचते हैं। तो तकवा तक पहुँचने के लिए हमने देखा कि हम 4 सीढ़ी पार किए। एक ज़ालिका से मुराद वह किताब जो लोहे महफूज में है, एक ऐसी किताब जिसमें फेर बदल नहीं हो सकती। यह किताब अल्लाह ताला के तरफ से, ये भी पता चल गया हमको, और इस किताब में कोई फेर बदल नहीं हो सकता। ये अरबी लफ्ज़ किताब से ही पता चल गया, अल किताब से ही। उसके बाद ला रैब मतलब अब इस किताब के ज़रिए तुम अपने सारे शक व शुबहात को दूर कर सकते हो। जितना क्वेश्चन है माइंड में, सही क्वेश्चन। अलिफ लाम मीम से हमको पता चल गया था, क्योंकि अलिफ लाम मीम जब अल्लाह ताला बताए तो अल्लाह ताला हमको ये भी जाहिर कर दिया कि तुम सब कुछ नहीं जान सकते, जो मैं बताऊंगा वो तुम जानोगे। तो इंसान एक महदूद इल्म हासिल कर सकता है, एक लिमिटेड इल्म हासिल कर सकता है। तो उसको इल्म हासिल करने के लिए सबसे पहले जिससे वो इल्म हासिल कर रहा है उसकी खासियत जान ले कि ये किताब कोई आम किताब नहीं है, ये किताब अल्लाह की किताब है। ये किताब वह किताब है, ठीक है, जो लोहे महफूज में लिखी गई है। तो इसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकता, और इस किताब के ज़रिए हमारी ज़िंदगी के हर सवाल का जवाब मिलेगा। ये किताब, ये हमको यही इसी आयत में पता चल रहा है। अब देखिएगा, हिदायत तक तो हम पहुँचे, लेकिन तकवा तक पहुँचने के लिए हमको कौन कौन सा चीज़ देखना पड़ा? कि यह किताब लोहे महफूज की किताब है, इस किताब में कोई फेर बदल नहीं हो सकती, और इस किताब में हमारे सारे सवालों का जवाब है। हमारे सारे सवाल का जवाब ज़िंदगी से जो जुड़ा हुआ है, उस सारे सवालों का जवाब है। लेकिन उस जवाब को हासिल करने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? हमको एक फ़कीर बनना पड़ेगा, क्योंकि हम अल्लाह के सामने आ रहे हैं, हम ऐसी किताब के सामने आ रहे हैं जो अल्लाह के तरफ से भेजा हुआ, सारे कायनात के मालिक के तरफ से भेजा है, और हमें कुछ भी नहीं मालूम हो सकता सिवाय जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाया या हमें सिखाएगा। ठीक है, इसलिए हमको एक फ़कीर का लहजा लेके आना है, तब जाके हम झुक के जब हम जानने की कोशिश करेंगे, जानने की सच्चे दिल से कोशिश करेंगे, तब हम अपने शक को दूर कर सकते हैं, अपने सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं। जब हम सवालों का जवाब ढूंढेंगे तो प्रैक्टिकल है भाई, एग्ज़ाम में भी पास हो जाओगे। अगर तुम अपने सवालों का जवाब सही सही एग्ज़ाम में लिखते हो तो 100/100 मिल सकता है, 100/100, 100% पास, डिस्टिंक्शन से पास हो जाएंगे।
तो उसी तरह से अल्लाह ताला हमको ये बता रहा है कि ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, जब तुम सारे शक व शुबहात जो तुम्हारे मन में है उनको इस किताब से दूर कर लोगे तो तुम हिदायत पे चलोगे। और जब तुम हिदायत पे चलोगे तो चलते हुए ये ध्यान रखना है, तकवा, मैंने बताया ना तकवा क्या है, वो घोड़े का याद रखिए। उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी बताया कि अगर एक कांटे भरी झाड़ से हमको गुजरना है तो हम कैसे गुजरेंगे, कांटा लग जाएगा, हमको लहूलुहान हो सकते हैं, इसीलिए हम बचते बचाते हुए गुजरेंगे। उसी तरह से हर नुकसान से बचते हुए नेकी करना, ये है तकवा। ठीक है, कोई भी बुरी चीज़ है उसको जानते हुए उससे बचते हुए हमको चलना और अच्छा अमल करना, ये है तकवा। और हमारी सारी चीज़, हमारा इबादत, सूरह बकरा आयत नंबर 21 में तकवा से जुड़ा हुआ है। या अय्युहन्नासु अब्दु रब्बकुमुल्लज़ी, लोगों को कहा गया कि अपने रब की बंदगी, इबादत को कबूल करो, गुलामी को कबूल करो, किस वजह पे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम सही और गलत में फ़र्क करने वाले हो जाओ। और सही और गलत में जब हम फ़र्क करके आगे बढ़ेंगे तभी हम कामयाब होंगे। तो ये हमको पहली 2 आयत में ही पता चल रहा है, इसकी तफसीर नहीं है, ये मुख्तसर सी बात है, तफसीर इंशाअल्लाह बाद में करेंगे। तो मुत्तकी बनने के लिए हमको क्या क्या पॉइंट देखना पड़ा, ज़ालिका अल किताब, ला रैब, और परहेज करते हुए, सही और गलत में फ़र्क करते हुए उस पर चलना। जब हम उस पर चलेंगे तो मुत्तकी बन जाएंगे। और चलेंगे तो जैसे एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं 100/100 लाके, उसी तरह से दुनिया में भी पास हो जाएंगे और जन्नत जाएंगे इंशाअल्लाह। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने, और तकवा किसी के पास भी हो सकता है, मुस्लिम गैर मुस्लिम किसी पास भी हो सकता है। तो गैर मुस्लिम जब तकवा इख्तियार करता है, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम से पहले उनके अंदर तकवा था, वो सही गलत में फ़र्क करने की बहुत कोशिश करते थे। और यही वजह है कि सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम कबूल करने वाले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हुए। ठीक है, इस तरह के बहुत लोग हैं जो सही और गलत में फ़र्क करने के लिए वो कोशिश करते हैं, बशर्ते कि उनको कोई राह दिखाने वाला चाहिए। तो किसी को कुरान मिल जाता है तो उससे खुद राह पा जाता है, और किसी को कुरान मिलता भी है लेकिन तकवा नहीं होने की वजह से वो कुरान से फ़ायदा ही नहीं उठा पाता। तो खैर, हम समझ ही गए होंगे कि तकवा क्या है और क्यों अल्लाह ताला ने जन्नत की बशारत तकवा के ज़रिए हमको दी है। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।